A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panikre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 10, and we are going to start a new chapter today, that is chapter 3, is metals and non-metals. And before jumping into this chapter, I'd like to tell you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay? So today we are going to start a very new chapter, that is chapter 3, metals and non-metals. So before starting this chapter, can anybody tell me what is metal and what is non-metal? First of all, give me some examples. Very common example. Metal like your gold, silver, okay, copper, aluminium, these are metals. And non-metals? Non-metals are like sulfur, potassium, chlorine, oxygen, okay. So we already know that is a periodic table where metals, non-metals and metalloids. Now what are metalloids? Metalloids have the intermediate property in between that of the metals and non-metals. Am I right? Okay. So today we are going to start this new chapter and we'll get into detail of this chapter like what is metal and what is non-metal. Okay. So without wasting any further time, let's get started and let's see what is there for today. Today we'll be discussing a very common topic, that is physical properties of metals and physical properties of non-metals. Right? So you have already read about physical properties of both the metals and non-metals in your previous classes. Right? You have read in standard 8, you have read in standard 9, and you are again reading it in standard 10. But this time we'll be reading everything in very much detail. Okay? But before that, let's brush up. Today we are going to read it, the physical properties of metals and non-metals, and I'm 110% sure you may know 90% of it or even more than that. Okay, so let's brush up and conclude this part. The first part is physical properties of metals. ठीक है, जो भी मेटल है उसका फिजिकली क्या प्रॉपर्टी है, लेटर ऑन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो फिजिकली अच्छा ये जो डायग्राम दिख रहा है वो मेरे को बता सकता है कि ये जो डायग्राम है व्हाट इज एक्चुअली द पिक्चर, क्या है, पिक्चर क्या है, इसमें है क्या, कुछ सिल्वर कलर का दिख रहा है, व्हाट इज इट, मर्क्यूरी. ओके, मर्क्यूरी, दिस इज मर्क्यूरी. ऑलराइट, एंड मर्क्यूरी जो होता है इट इज वेरी, it's not solid, it's liquid. Okay, so as a first property came, metals are solid. तो basically जो भी metals होते हैं वो solid होता है. Now give me some example like that of gold. The gold we wear, solid. The silver we wear, solid. Aluminium sheets we see, solid, right? Then copper आप देखते हो wires के form में हम पाते हैं, solid. So maximum metals are solid and the only exception over here is mercury. Make sure that whenever you're reading a chapter, you need to be very much sure that you know about the exception, because exams में ये properties नहीं पूछता है ऐसा directly. आपको क्या पूछ सकता है, आपको exception पूछेगा, fill in the blanks आएगा या MCQs आएगा या ऐसा true false आएगा, you will be asking about exception. Okay, so and chemistry is 90% about exception, inorganic. Okay, and we are reading the inorganic one. So except mercury, every metal is solid. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द एक्सेप्शन. कौन सा मेटल, मर्क्यूरी, कौन सा मेटल है जो सॉलिड नहीं है, दैट इज मर्क्यूरी. यू कैन सी द एग्जांपल, इट्स लिक्विड. ओके ओके, नेक्स्ट, वेयर वी फाइंड मर्क्यूरी, इन द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर में क्या होता है, मर्क्यूरी होता है. दैट्स वाई बोला जाता है कि मर्क्यूरी को ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकना है, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर जो आपका थर्मोमीटर, इट विल बी कंज्यूम्ड बाय एनी ऑफ द एनिमल्स, दे विल बी डाइंग. ओके, दैट्स वाई कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकते और ऐसे तोड़ के भी नहीं फेंकना है, बिकॉज मर्क्यूरी इज हार्मफुल. ओके, नेक्स्ट, मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स हार्ड होता है, हार्ड मतलब एकदम पत्थर टाइप का, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम है सब. लेकिन लिथियम, पोटेशियम और सोडियम जो होता है वो क्या होता है, वो हार्ड नहीं होता. वो कैसे दिखता है, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है. ठीक है ना. ओके, सो विल सी सम पिक्चर्स फर्स्ट. Okay, so these are certain sort of pictures as you can see. ठीक है.
तो बेसिकली क्या होता है, दैट इज लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो हार्ड नहीं होता, दे आर सॉफ्ट, आप उसको काट सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, पहला वाला लिथियम है। अब बताओ लिथियम कहाँ मिलता है? लिथियम हमें मिल जाता है बैटरीज में। जब भी हम बैटरी, पेंसिल बैटरी या दूसरा टाइप का बैटरी हमारे जो घड़ी वगैरह में लगता है, दे आर मेड अप ऑफ लिथियम, ओके। लिथियम बैटरीज होती हैं, लिथियम को आप काट सकते हो चाकू से, दे आर सॉफ्ट। सी पोटेशियम, पोटेशियम एकदम पाउडर्ड फॉर्म में है, right? So you can find the lithium, you can cut, it's very soft. Potassium is in powdered form. And the final one is sodium. You can cut sodium. Okay. So see, metals are solid except that of mercury, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको छोड़ के बाकी सब सॉलिड होता है, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड, मेटल क्या होता है? एकदम हार्ड होता है, ठीक है। तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम आपने देखा, वो एकदम लिथियम एकदम सॉफ्ट होता है, ओके। पोटेशियम पाउडर्ड फॉर्म में होता है और सोडियम कैन बी कट विद अ नाइफ, ऑलराइट। So these are soft. You have to remember the exceptions as I told. Lithium, potassium, sodium, आपको याद रखना है कि lithium, potassium, sodium ये तीनों elements जो होते हैं soft होते हैं. They are not hard. Okay. So every time remember the exception. Next is metallic. Metals have metallic luster. चमक होती है. किसकी चमक होती है? कौन से metal की चमक होती है बताओ? गोल्ड का चमक होता है, सिल्वर का होता है, ठीक है। तो these are क्या चमकीला होता है, मेटेलिक लस्टर, शाइन होती है उसमें। मेटल्स आर मेलिएबल। अब मेलिएबल का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, ठीक है, हम शीट बना सकते हैं। एग्जांपल एल्यूमिनियम, ठीक है, वॉट एवर एल्यूमिनियम यूजिंग, लाइक एल्यूमिनियम शीट्स हम यूज करते हैं, अलमीरा में जो शीट्स होते हैं डॉल, सो दीज हैव बीन बीटन इनटू शीट्स, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल्स में होती है, पाई जाती है, ऑलराइट। ओके, नाउ दे आर डक्टाइल, drawn into thin wires. Can you give me some example of ductility? कॉपर, ठीक है, हम जो भी पर्टिकुलर कॉपर यूज करते हैं हमारे वायर्स के अंदर, वो क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, ठीक है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, गॉट इट, वायर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नाउ दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, राइट। सो द लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स हार्ड भी होता है, सॉलिड भी होता है, शाइन भी करता है, शीट भी बना सकते हैं, डक्टिलिटी भी, वायर भी होती है। सो देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लाइक गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। तो मेटल्स का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, एक लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आकर ही वो मेल्ट होने लगता है, ठीक है। जैसे कि यू कैन सी दैट ऑफ गोल्ड। गोल्ड क्या आप ऐसे ही आग में लगा दोगे तो मेल्ट हो जाएगा? नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई केल्विन चाहिए उसको, फ़ारेनहाइट चाहिए, यू कैन से सेल्सियस। तो उस पर्टिकुलर रेंज में आपने देखा होगा कि मेल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोल्ड एक्सचेंज करने जाते हो शॉप में, तो क्या करता है, यू मस्ट हैव सीन, इफ़ यू हैव, पुराने ज़माने में, आजकल तो मशीनरी होती है, तो बेसिकली अगर आप गोल्ड जाओ ऐसे रख दो कि आग के ऊपर, तो मेल्ट नहीं होगा, बिकॉज उतना रेंज ऑफ टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा, इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मेल्ट। सो क्या करते हैं, भट्टी में डालते हैं, ठीक है, जैसे आग पूरा ये होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, उसमें जाके वो मेल्ट करते हैं गोल्ड को, राइट। सो मेटल्स रिक्वायर अ वेरी हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मेल्ट, बट एक्सेप्शन अगेन, गैलियम एंड सीजियम जो होता है वो ऐसे मर्क्यूरी की तरह ही दिखता है, वो हाथ में एकदम आप रखोगे तो ही मेल्ट हो जाता है, ओके। सो मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड, दे वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, आराम से रूम टेम्परेचर में आपके हाथ में ऐसे डालते हैं वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अदर मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, दे रिक्वायर अ वेरी हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मेल्ट। Now see some picture. This is first is lithium. Lithium कहाँ यूज होता है, थोड़ा यूज जान लेते हैं। लिथियम कहाँ यूज होता है, लिथियम जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है, हमारे बैटरीज में यूज होता है। ना पोटेशियम, पोटेशियम लैबोरेटरीज या डिफरेंट चीज़ें में भी आप पोटेशियम देखते होगे। इवन यू कैन फाइंड पोटेशियम इन नेचर, लाइक आपका पर्टिकुलर जो इरिगेशन में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, दे हैव पोटेशियम इन इट, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। नेचर में भी पोटेशियम इन द सॉइल मिल जाता है। एंड दिस वन इज लिथियम, पोटेशियम एंड क्या है, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम, you can find sodium, okay, sodium, ये सब जो particular chemical substance है, basically it's not useful, like हमें नहीं चाहिए sodium। this is gold, चमक रही है एकदम से, high melting point में ही melt होती है।
शीट्स, एल्यूमिनियम आप शीट्स में उसको बीट करके you can form into sheets. You can use it various places. Okay, next. This is copper. Okay, in order to it is used in the conduction of electricity. ठीक है, तो ये हीट एक्सचेंज में यूज होता है. कॉपर जो होता है बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, हेंस इट इज ड्रॉन इनटू वायर्स. ऐसा कुछ भी वायर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें. ठीक है, जिसमें हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं उसी को हम लोग be draw into wires so that there will be proper conduction of electricity and heat. Okay, and the example is copper. Now see मेल्ट क्या हो रहा है हैंड में, गैलियम और सीजियम देखो जैसे उसके हाथ में मेल्ट हुआ है वैसे मेल्ट हो जाता है. ठीक है, सो इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ विच इट कैन easily be melted into your hands. Now see हाई मेल्टिंग पॉइंट ऐसे भट्टी में ही आपको पर्टिकुलर जो भी गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, मेल्ट किया जाता है, बनाया जाता है, शेप्स दी जाती है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए अदरवाइज नहीं होगा. अगेन डक्टिलिटी रहती है, ड्रॉन इनटू वायर्स. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में ही मेटल्स बॉयल होते हैं. ऐसा नहीं कि तुम जाओ पानी में डाल दो बॉयल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. मेटल्स में जैसे कि पिछले पिक्चर में दिखाया बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ही मेल्ट या बॉयल होगा. ठीक है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर ड्रॉइंग ऑफ वायर्स. ठीक है, हम वहाँ से ड्रॉ वायर्स बनाते हैं एंड इट इज़ यूज इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लाइक हमारे घर में जितने भी वायर्स हैं वो सब कॉपर के बने हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल AC, एयर कंडीशनर में कूलिंग क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड कूलिंग इज दैट इट इज मेड अप ऑफ, अंदर जो होते हैं जो वायर्स फॉर कंडक्शन ऑफ योर हीट एक्सचेंज ऑफ हीट एंड कोल्ड wind so called. Okay, that is because of the presence of copper wires inside it. तो कॉपर जो होता है वो इतना हीट हो जाता है कि उससे जो होता है एक्सचेंज ऑफ योर हीट एंड कोल्ड waves, or you can not waves, cold and wind happens. Okay, so that is because बहुत अच्छा conduction होता है because of which cooling होती है. That is the mechanism behind how the AC works. और कुछ जादू नहीं है वो. ठीक है, गर्म हवा अंदर से बाहर और बाहर हवा अंदर देती है टेम्परेचर के हिसाब से. दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इनसाइड इट. तो जितना ज़्यादा कॉपर होगा उतना ज़्यादा AC का कॉस्ट होता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन which turn you are buying. So that is actually the conduction of electricity. So because of the presence of copper or aluminium, there is conduction of heat and electricity. Okay, and the best conductors are silver and copper. That's why it is very costly. Copper होता है इसलिए costly होता है. Silver again costly. Poor conductors कौन है? Lead and mercury. Mercury और lead को अगर आप conduction में use करोगे तो बहुत मतलब नहीं हो पाएगा प्रॉपरली. बट सबसे बेस्ट जो होता है कॉपर और सिल्वर. दैट्स व्हाई दीज आर यूज्ड इन योर वायर्स. ओके, एंड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. नेक्स्ट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट सप्लाई करता है. सेम इलेक्ट्रिसिटी है, सेम एग्जाम्पल है सिल्वर और कॉपर. मेटल्स आर सोनोरस. ओके, प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन. ठीक है, तो जैसे कि हमारा बेल हो गया. ठीक है, वो कॉलिंग बेल नहीं, जैसे मंदिर का बेल हो गया. दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड व्हेन एवर यू स्ट्राइक इट. व्हाट इज द रीजन व्हाई इट प्रोड्यूसेस अ साउंड? इट प्रोड्यूसेस अ साउंड बिकॉज ऑफ एक अलग सा एक साउंड प्रोड्यूस होता है क्योंकि मेटल जो होता है सोनोरस होते हैं. ठीक है, दे हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज सोनोरोसिटी विच एग्जैक्टली मीन्स दैट दे कैन प्रोड्यूस साउंड. गॉट इट? वेरी गुड. So that was a property of metals that you have already read. ये सारे metals ये सारे properties और basics हैं जो आपको already पता है कि नहीं? Okay. Next, now what are the physical properties of non-metals? जो भी non-metals हमारे हैं, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इन सब का क्या particular properties है? Okay. So what are the examples? फर्स्ट थिंग इज दैट नॉन मेटल्स जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है. सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है? कार्बन और सल्फर, फॉस्फोरस. ठीक है, फॉस्फोरस पाउडर्ड फॉर्म में, कार्बन पाउडर्ड फॉर्म में, सल्फर पाउडर्ड फॉर्म में. दे ऑल आर सॉलिड्स. ओके, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस. नाउ लिक्विड के फाइन में ब्रोमीन मिल सकता है आपको. ब्रोमीन एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है. ठीक है, एक्सक्लूसिव. ठीक है, हाँ वही होता है ब्रोमीन, ब्राउन कलर का.
गैसेज में ऑक्सीजन हम लेते हैं, हाइड्रोजन इज अवेलेबल, नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट. These are non-metals. Okay, so there are various examples of non-metals, and non-metals exist in all three forms: solid, liquid and gas. Now non-metals are soft. ठीक है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि मेटल्स वहाँ पे हार्ड था बट नॉन मेटल्स यहाँ पे सॉफ्ट होती हैं. ठीक है, चाहे जैसे कि ये पाउडर्ड फॉर्म में मिलती है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस. ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड में होता है. सो दीज आर सॉफ्ट. बट here is there is an exception. The exception is diamond. Okay, diamond is known as the hardest natural metal ever, hardest natural substance available in the environment. ठीक है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है डायमंड को पूरी दुनिया में. ठीक है, एंड दैट इज अ नॉन मेटल, इट्स नॉट अ मेटल. एज वी नो दैट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट दुनिया का सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल है दुनिया में वो है डायमंड, जो कि एक नॉन मेटल. रिमेंबर द एक्सेप्शन. ओके, नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर. उसमें चमक नहीं होती. नॉन मेटल जो भी हमारा होता है उसमें लस्टर नहीं होता है. ठीक है, दे डू नॉट हैव लस्टर, वो शाइन नहीं करती है. समझ गए? ओके, so non-metals do not have luster, they don't have shine except iodine crystals. Okay, non-metals do not have luster except iodine crystals. यानी कि नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती. जैसे कि मेटल्स चमकीला होता है, गोल्ड या सिल्वर, वैसे ही नॉन मेटल जैसे कि आपका कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ये चमकता नहीं, नॉर्मल येलो पाउडर, वाइट पाउडर रहता है. ठीक है, सो दे आर अगेन नॉट लस्टरस. बट इसका एक्सेप्शन है आयोडीन क्रिस्टल, जो कि पर्पल वायलेट कलर का होता है, वो एकदम चमकता है, वो एकदम शाइन करता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, सो दैट इज एन एक्सेप्शन. अगेन यू हैव टू एक्सेप्शन. फर्स्ट दे आर सॉफ्ट. ठीक है, तो सॉफ्ट है तो क्या है कि एक्सेप्ट डायमंड विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. एंड सेकेंड इज नॉन मेटल, जो है कि वो लस्टर नहीं होता बट आयोडीन लस्टरस होता है, चमकीला होता है. ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है. नॉन मेटल्स आर नॉट मेडिएबल. ठीक है, उन्हें जो हम होता है दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स. हम उन्हें शीट्स नहीं बना सकते. ठीक है, हम ऐसे जो अगर कार्बन को अगर शीट बनाने चाहेंगे, सल्फर को अगर शीट बनाना चाहेंगे तो नहीं होगा, ऑलरेडी पाउडर है, टूट जाएगा. ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मैं ब्रोमीन को वायर नहीं बना सकती हूँ, फॉस्फोरस को वायर नहीं बना सकती हूँ. ठीक है, सो एग्जैक्टली दे हैव ऑपोजिट टू दैट ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ योर मेटल्स. गॉट इट? And remember the exceptions, like iodine crystals are lustrous, whereas diamond is the hardest material obtained in the environment, which is again hard, not soft, but it is a non-metal. Now, okay, so this is the bromine. जो होता है आपका ब्रोमीन क्या होता है? Your bromine is liquid in form. Okay, your bromine is liquid in form. And see this one, ये जो आपका है this is your phosphorus. Okay, sulfur, sorry. See this one again, these all are non-metals. आपका oxygen, phosphorus, sulfur. Okay, जैसे कि आपका ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, सो दैट इज अ ब्राउन कलर लिक्विड, बेसिकली रेडिश ब्राउन, जो कि यू कैन सी इन द वेसल. ओके, दीज आर द एक्चुअली सब्सटेंसेस यू विल बी सी इन द लैबोरेटरी. ओके, ऑक्सीजन आपने देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर में हम स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज वी टेक ऑक्सीजन, राइट. नॉन मेटल्स विच इज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. तो लो नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट पे लो होता है. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हीट कंडक्शन नहीं कर पाती है एक्सेप्ट दैट ऑफ ग्राफाइट. ग्राफाइट यू नो वेयर इट इज फाउंड इन दी पेंसिल. पेंसिल में आपको ग्राफाइट मिलता है एंड इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगेन एक्सेप्शन केम, व्हाट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ नॉन मेटल? Graphite. Okay, all are poor except that of graphite, and they are not sonorous. All right, so these is whatever you will be doing. First do one thing कि आप एक चार्ट बना लेना, differentiation chart in between that of your metal and non-metal physical properties. Like metals का जो होता है sonorous होता है, non-metals non sonorous, high melting point, low melting point, high boiling point, low boiling point, good conductor of heat and electricity, poor conductor of heat and electricity. Okay, so make a chart and then draw that of a chart of exception कि हाँ कुछ कुछ exception है, जैसे कि metals जो non metals जो होता है soft होता है लेकिन diamond hard है. ठीक है, तो like हम heat and conduct electricity नहीं कर सकते in case of non metals, but graphite के केस में कर सकते हैं. So these are certain examples which you will be seeing.
ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द क्लासेस हम और आगे पढ़ेंगे. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वन. एंड ये जो पार्ट है इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट? यू हैव ऑलरेडी रेड इन अर्लियर क्लासेस लाइक दैट ऑफ योर 7th 8th 9th. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो बहुत बेसिक 5-7 फिजिकल प्रॉपर्टीज है. बट यस, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द एक्सेप्शन, बिकॉज एक्सेप्शन इज अ वन क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन द exams. Okay, so I hope you liked today's class and you enjoyed the session. It's a very common like brushing up session for you because you've already read all this particular contents like physical properties of metals and non-metals in your previous classes. So I hope that you had a good revision today, and the next we'll be reading in the next classes. The further we'll be continuing. Until and unless then, have a good day and keep smiling. And if you have any doubt regarding this particular chapter or any of the chapters, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And I'll be seeing you in the next session. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.